موجود عاشقان رسول الحمدللہ 29 جون 2026 بروز پیر کو مدنی مذاکرہ ہوا، جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے عاشقان رسول کے جامعات و مدارس کے طلبہ کرام نے شرکت کی۔ آئیے ان میں سے چند کے تاثرات سنتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کی، دل کو بہت ہی سکون ملا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پہ یہاں حاضری ہوئی۔ یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے کہ دیگر سنی جامعات کو یہاں شامل کیا گیا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل نو ٹھنڈ پہ گئی، وہ کیفیت ہے۔ الحمدللہ بڑا سرور آ رہا ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے جتنے بھی ملفوظات ارشاد فرمائے یقیناً سارے ہی ان کو یاد رکھا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، ان کو آگے پھیلایا جائے۔ یہاں پر جو بیٹھ کر سیکھا وہ انشاءاللہ ہمارے لیے آگے دین کا کام کرنے میں بہت آسانی کا سبب بنے گا۔ امیر اہل سنت نے جو تربیت فرمائی ہے اور جو فیوچر میں ہمارے علماء ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے بڑی مفید جو ہے نا وہ باتیں بتائی ہیں۔ یہاں پہ آ کے بڑی خوشی ہوئی۔ عاشقان رسول کا جو ہجوم ہے الحمدللہ، اللہ میری حاضر بھی یہاں آ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ جب ہم یہاں پہ آئے تو بہت ہی اچھا ہمیں ماحول پرووائڈ کیا گیا اور ماشاءاللہ بہت زیادہ روحانی کیفیات ہیں۔ امیر اہل سنت نے سمجھایا، اسی طرح وہ دل پر باتیں اترتی گئی۔ انشاءاللہ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوا، بہت الحمدللہ اچھا سلسلہ ہوا۔ جس طرح امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، الحمدللہ مجھے بھی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا تو ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد قبلہ حضرت صاحب کی زیارت تھی، وہ الحمدللہ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی۔ بہت ہی زیادہ دل میں اطمینان پیدا ہوا ہے اور خود بھی یہ شوق بھی پیدا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ یا اللہ کے کرم سے ہمیں بھی اللہ پاک یہ توفیق دے، ہم بھی کسی طرح دین کی خدمت کریں۔ جو الحمدللہ آج یہاں پر آ کے ہماری کیفیت ہے اور جو سرور ہے جو ہم نے یہاں پر آ کر پایا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو یہاں پر تقسیم ہو رہی ہے۔ الحمدللہ جس طرح امیر اہل سنت طلباء کی تربیت کرتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بہت کمال ہے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت ایک طلباء کی جو تربیت کرتے ہیں ان کا انداز بہت ہی نرالا ہے ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی جو ہے نا ایک ماشاءاللہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور جو یہ صرف نیشنل لیول پر نہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت اچھا یہ ورک کر رہے ہیں۔ اللہ مزید ہمارے دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، یہ ہمارے لیے اہل سنت کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے، ہم بھی قدم بقدم دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ عمل کا جذبہ وہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تحریک کو تا قیامت شاد اور آباد رکھے۔ جو دعوت اسلامی والے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور محنت والا کام کر رہے ہیں کہ حضور کے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی بہت اچھا دین کا کام کر رہی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ تحریک ہے جو آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو سنوار دے گی۔ دعوت اسلامی کا جو کام ہے الحمدللہ دنیا بھر میں بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل ہمیشہ دیکھتے رہیں، اللہ پاک اس کے ذریعے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو جو ہے وہ دین پر چلنے والا بنائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی مدنی مذاکرے میں موجود عاشقان رسول، آپ نے سنے مدنی مذاکرے میں آنے والے عاشقان رسول کے تاثرات۔ اگر آپ بھی علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدنی مذاکروں میں ضرور تشریف لائیے۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب۔ مدنی مذاکرہ رشتہ جوڑنے والا کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلے کے طور پر بھلائی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحم یعنی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا رشتہ جوڑنا وہ ہے کہ جب اس سے تعلق توڑا جائے تو وہ تعلق جوڑے۔ اللہ اکبر، اللہ نیک توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اللہم آمین۔ آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی 15ویں رات ہے اور میرے بڑے بھائی صاحب کی برسی کی رات ہے۔ ہم نے ایصال ثواب کیا ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کر
मरहूम भाई अब्दुल गनी को इसाल सवाब कर दीजिए। अल्लाह इसका आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसाले सवाब की नीयत से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान वालों के दिलों में मौजज़न करे, ईमान वालों के दिलों में मौजज़न करे। इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1448 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की आज 15वीं रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 15 हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, मैं सारे विरदो वजीफे छोड़ दूंगा और अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूंगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई मुख्तसरन मदनी फूल अर्ज करने हैं। मुहद्दिस आदम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उलमा व तलबा के लिए ईमान अफरोज मदनी फूल बहुत गौर से सुनने वाले हैं। नंबर 1, बयान ठोस करें, जो मसला बयान करें उसका सबूत तहकीकन या इल्जामन आपके पास हो। नंबर 2, आप हों और किताबों का मुताला। इसमें कमजोरी बहुत है, बहुत कमजोरी है। मैं पूछूं, फतावा रज़विया शरीफ जिसका हर वक्त डंका बजाते हैं, किस किस ने पूरी पढ़ी है? बिलिस्तियाब, सोशल मीडिया, किस किस के पास पेज है सोशल मीडिया का? तो शायद बहुत सारे हाथ उठ जाएंगे। मुझे डर लग रहा है कि आइंदा पता नहीं हमें उलमा जो पहले जो मिले हमको उलमा जिनकी कमाई खा रहे हैं, ऐसे उम्मत को उलमा मिलेंगे या नहीं। बाहर शरीयत किसी ने बिलिस्तियाब पढ़ी? जो यहाँ वाले हाथ उठा रहे हैं, मेहमान पता नहीं हाथ उठा रहे नहीं, बाहर से आए, यही हैं जो पढ़ रहे हैं। यहाँ मुताले के शौक रखने वाले माशाअल्लाह मैंने देखे हैं। अब ये पूछना आपको जज्बा दिलाने के लिए तो समझे कि ये आपको पढ़ने हैं। फतह रज़विया शरीफ, बाहर शरीयत, दीगर आपकी अपनी किताबें बहुत सारी हैं जिनको पढ़ना है, मुताला करें। खाली आपने दरस निज़ामी का कोर्स कर लिया, आप समझे कि मैं आलिम बन गया, ये माफ कीजिए, हुनूस दिल्ली दूरस्त। बाहर शरीयत में हज़रत सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, उस वक्त 14-15 साल का दरस निज़ामिया कोर्स होता था कि ये पूरा पढ़ लिया तो इसके बावजूद फरमाते आलिम नहीं बने अभी। हाँ, अभी तो आपको थोड़ा पढ़ना आया है, आगे पढ़ना है।
تو یوں پورا مطالعہ آپ کا نجی طور پر آپ کو فرصت ہونی نہیں چاہیے. آپ کے پاس ہر وقت کتاب ہونی چاہیے. لیکن اب ہمارے پاس ہر وقت سوشل میڈیا ہے. علماء دیکھے میں ہر وقت کتاب، جہاں موقع ملا 2 منٹ ملے شروع پڑھنا. تو یہ جب تک آپ اس میں وہ غریق بحر مطالعہ نہیں ہوں گے تو آپ غواص جواہر یا کیا کہنا چاہیے، غواص بحر علم نہیں ہو سکیں گے. غریق تو سمجھتے ہو، غواص میں گوتا لگانے والا، اس میں سے آپ وہ موتی نہیں لا سکیں گے. خالی آپ نے پڑھا وہ بھی بھول جائیں گے. عربی عبارت پوری بنانا کس کو آتی کس کو نہیں آتی سب سمجھتے ہوتے، مطلب ہے نہیں، توجہ اب نہیں ہے. وہ دور چلا گیا جب ماشاءاللہ تلاوہ ایسے ہوتے تھے کہ آج کے کئی علماء کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں، اتنی ان کو نالج ہوتی تھی. اب مطالعہ نہیں ہے. دیگر مصروفیات ایسی آ گئیں کہ جس کی وجہ سے دینی مطالعہ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن توفیق نہیں ملتی. مصروفیت ایسی ہماری آگے پیچھے ہو گئی سائڈوں پر. اس نے بڑا دور کیا ہے. سوشل میڈیا، موبائل فون، پہلے یہ ان چیزوں کا تصور نہیں تھا. تو ٹائم ہو تو بندہ کرے کیا، پھر مطالعہ. تو یوں مطلب آگے بڑھنے کا چانس ہوتا تھا. اب تو دل اس میں لگتا ہے، مطالعے میں نہیں لگتا. مہربانی کریں، امت کی رہنمائی آپ نے کرنی ہے تو یہ کہ اپنے آپ کو رہنما تیار کریں. آپ محراب و ممبر آپ نے سنبھالنے، جامعات، مدارس، یہ سب آپ نے سنبھالنے. امت کی رہنمائی کرنی ہے تو خوب ڈٹ کے مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ ابھی کچھ نہیں گیا، ابھی تو آپ کی جوانیاں ہیں، ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ ہمت کریں، خوب مطالعہ کریں. اور ایک بار مطالعہ کرنے سے اگر یاد نہیں ہوتا 2 بار 3 بار یہ کرنا پڑتا ہے. مطالعہ کافی نہیں ہوتا، یاد رہنا یہ ضرورت ہے. امتحان میں آپ 100 کتابیں پڑھ لیں تھوڑی پاس ہوں گے جب تک آپ کو یاد نہیں ہوگا اور آپ جوابات نہیں دیں گے. انڈرسٹوڈ ہے. یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے مدنی پھول پر میں نے تبصرہ کیا ہے، جو آپ نے فرمایا آپ ہوں اور کتابوں کا مطالعہ، لیکن ہم ہیں اور سوشل میڈیا. ہمارا اب حساب یہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور رج کے کرنا ہے انشاءاللہ. شیطان دیکھتا چلا جائے گا کہ اب یہ گئے میرے ہاتھ سے، اب یہ پکے عالم بن کر میرا ناطقہ بند کر دیں گے انشاءاللہ، ناکہ بندی کر دیں گے شیطان کی. نمبر 3، جس قدر علم میں توجہ کریں گے اتنا ہی ترقی و عروج حاصل کریں گے. یہ بھی اسی کا پوائنٹ ہے. یہ مزید فرماتے ہیں آپ دین کے مبلغ اور ترجمان ہیں. نمبر 4، آپ دین کے مبلغ اور ترجمان ہیں. آپ کا کردار بے داغ ہونا چاہیے. حرص و طمع، تکبر، بے جا جھگڑے، لڑائی، غصہ، چڑچڑاپن، ڈانٹ ڈپٹ، یہ کچھ نہیں ہو. ستھرا کردار ہو، حسن اخلاق کے پیکر ہوں کہ بندہ دیکھ کر آپ کا گرویدہ ہو جائے اور آپ کے پیچھے چل پڑے. یہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کسی کے پیچھے چل پڑے تھے. یہ تو جنرل اسٹوڈنٹ تھے اور بی اے کا غالباً ایگزام دینے کے لیے یہ لاہور آئے تھے، یا کسی اپنے اس کا کالج کا امتحان دینے آئے تھے لاہور. اور وہاں شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کسی جلسے میں کوئی خطاب وغیرہ تھا، تو یہ وہاں چلے گئے. تو بس ان کو دیکھا جب مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بہت نورانی تھا، تو ان کو دیکھ کر بس ان کا دل آ گیا کہ ایسی نورانی شخصیت. بس ان کے پیچھے یہ جب جلسہ ختم ہو گیا یہ پیچھے چلنے لگے. انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ پیچھے آنے والا اس کے اندر کوئی شخصیت چھپی ہوئی ہے. تو حضرت نے ان پر شفقت فرمائی کہ تم ہمارے ساتھ آؤ گے بریلی شریف. چلو تو بہرحال یہ پیچھے ہو لیے، ساتھ ہو لیے، پڑھنا شروع کر دیا. اور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور آج تک ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے نا. ولایت کی منزل پر پہنچا دیا ایک ولی نے ان کو اپنی نگاہ کرم سے. تو اللہ
करम फरमाए कि बस हम भी मतलब ये कि बस पढ़ने वाले, कोशिशें करने वाले और दीन फैलाने वाले बन जाएं। नंबर 5, इल्म और उलमा के वकार को हमेशा मद्देनजर रखें। कोई ऐसा काम ना करे कि उलमा का वकार मजरू हो। ये भी बहुत कुछ अपने अंदर मवाद रखता है। एक एक पॉइंट ऐसे कि इनमें बहुत देर तक बयान हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ फरवा रहे ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, अपने अंदर ऐसा है नहीं है, ये हमने गौर करना है। नंबर 7, नंबर 6, इल्म दीन को दुनिया हासिल करने का जरिया हरगिज ना बनाए, अगर बनाया तो नुकसान उठाएंगे। नंबर 7, उलमा किराम हमेशा लिबास उजला और उम्दा और आला पहने, नीज इसकी शरई हैसियत का ख्याल भी जरूरी है। नंबर 8, उम्दा जूता इस्तेमाल करें ताकि दुनियादारों की निगाह आलिम के जूतों पर रहे। नंबर 9, नमाजियों से अखलाक से पेश आए। जो सुन्नी धोखे में मुब्तला हैं, इनकी इस्लाह जारी रखें। नंबर 10, दुनियादारों से बेतकल्लुफाना रवाबित कायम ना करें, भरे भरे बाजार में आपकी इज्जत का नीलाम कर देंगे दुनियादार जो लोग हैं ना। बहुत एहतियात की जरूरत है। एक साहब बहुत मशहूर उस्ताद के शागिर्द थे, दरस निजामी से मुशर्रफ थे। तो कहीं किसी शहर में, बल्कि किसी मुल्क में, मैंने कहीं तारुफ करवाया कि ये आलिम साहब है, तो वो जानते थे इनको। तो आलिम कहाँ है? व्यापारी है, व्यापारी। उनके सामने उनको बोल दिया बेतकल्लुफी। अब कैसी उनकी जो कुछ हुआ होगा, दिल पे गुजरी होगी, तो मेरे सामने, मैं तो बाहर का मेहमान था और एक अपना असर होता है आदमी का, बाहर वाले का। तो इसलिए मतलब बेतकल्लुफी। वो तिजारत में और इसमें लगे हुए थे जो हजरत थे दीवाने, थे बड़े दीवाने। तो अल्लाह पाक इनकी बरकतें हमको नसीब फरमाए उलमा की। नंबर 11, हदीस पाक की 380 कुतुब हैं। आजकल सारी कुतुब अहादीस मिलती भी नहीं। ये अपने दौर की बात फरमा रहे हैं। अब मिलती है नहीं मिलती, हो सकता है अब तो वेबसाइट पर और ये कि मतलब अब शायद अवेलेबल हों नेट वगैरह पर। तो आजकल सारी कुतुब है, अहादीस मिलती भी नहीं। लिहाजा जब कभी तुमसे कोई किसी हदीस के बारे में सवाल करे तो ये मत कहो कि यह हदीस किसी किताब में नहीं, बल्कि यूं कहो कि यह हदीस मेरे इल्म में नहीं या मैंने नहीं पढ़ी। यह भी हो सकता है कि मैंने पढ़ी मगर हो सकता है मैं भूल गया हूं। अब तो हाफिज़ हज़ में सब धारे के मुतासिर है। वो हाफिज़े जो बुजुर्गों के थे कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे के रास्ते चलते हुए जब ये लोग उल्टी सीधी बातें करते होते तो कान बंद कर लेते थे। इनके हाफिज़े इतने मजबूत है कि कान के अंदर से चला गया ना दिमाग में तो ये फिर याद रह जाएंगे। सुनने से गुरेज करते थे। एक लीडर का मेरे मरहूम भाई बताते थे, उसका नाम लेकर बताते थे, मैं नाम नहीं लेता। वो हमारे मुल्क के लीडर थे कोई, तो बोला वो इतने मोहतात थे कि वो तांगे वाले जो होते ना, तांगे वालों से बात नहीं करते थे। पहले तांगे बहुत चलते थे, अब भी चलते हैं लेकिन अब कम हो गए। तो तांगे वालों से बात नहीं करती। उनकी गुफ्तगू का जो लहजा होता था, अंदाज होता था, शायद आपको अंदाजा होगा। आमतौर पर रेडियो वाले और ठेलों वाले और जो गुफ्तगू करते होते हैं, जिस अंदाज में अल्फाज बाजारी वो बोल रहे होते हैं, तो इनसे बात नहीं करते थे कहीं मेरा लहजा खराब ना हो जाए, बोलने का अंदाज इनका असर ना पड़ जाए। असोहबत वो असरा, सोहबत असर रखती है। नंबर 12, कुरान और हदीस और कुतुब दीनी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वहां पढ़ी है, यूं कहना चाहिए कि वहां रखी है। बारीक पॉइंट है। जो आम चीजें होती है उसको तो हम बोलते हैं कि भाई वहां देखो मेरी चप्पल वहां पड़ी होगी,
दीनी किताब है, तो ये लफ्ज वहां रखी है। अच्छा, अब वो जरा और खूबसूरत करने जाते थे, लोग नहीं समझते, वहां तशरीफ फरमा है, क्योंकि किसी ने मुझे सिखा दिया है। हर हफ्ते को हमारे यहाँ वो होता है, जब मैं होता हूँ कराची में, तो खुसूसी मदनी मुज़ाकरा इसी तरह लाइव होता है, यानी कि सवाल जवाब लोग कर रहे होते हैं इस्लाही भाई। तो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ बलोचिस्तान गए होंगे या बलोचिस्तान के होंगे, अब ये पूरा याद नहीं आ रहा, बोला कि ये जो आप कहते हैं ना कुरान शरीफ, वो है ना कि नीचे अगर कुरान शरीफ हाथ से छूट कर, अब भी बोलने में मजा नहीं आता, नीचे तशरीफ ले आए, तो कोई कफ़ारा नहीं है इसका। अवाम समझते हैं कफ़ारा है तो गुनाहगार भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी नीयत तो कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता कि यूं गिरा दे, माज़अल्लाह, समझे। तो इस पे कोई कफ़ारा या कोई सजा, कोई तौबा वाजिब नहीं होती। तो ये कोई मसला मैंने बताया होगा, तो वो कहीं किसी ने बलोची ने सुना होगा, तो बोला ये तशरीफ तो आदमी तो लाता है, आइए तशरीफ रखिए, तशरीफ लाइए, ये कुरान शरीफ तशरीफ, ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है। उसने मुझे कहा, मैं समझ किया कि ये अवाम, ये हमारी घर की बातें बाहर नहीं हो सकती, अवाम नहीं समझेगी कि मैं अदबन, मैं समझता मैं अदबन कह रहा हूँ कि तशरीफ। तो आप लोग तो खैर समझ गए होंगे, तकरीबन लोग समझ जाते होंगे, लेकिन अब ज़ाहिर है तरह तरह के लोग, हर एक हमारी जबान, हमारी उर्दू पूरी नहीं समझता, बलोची नहीं समझते, पठान नहीं समझते, सिंधी जो पुराने बुजुर्ग होते वो नहीं समझते, पुराने पंजाबी बुजुर्ग आपके वो जो असी तुसी के अलावा कुछ नहीं समझते, बल्कि ऐसी पंजाबी बोलेंगे कि आप नहीं समझेंगे, वो ऐसी पुरानी अपनी। तो इन सब को लेकर चलना है। अब ये कैसे हो ये समझ नहीं आती कि सबको हमारी गुफ्तगू समझ में आ जाए, तो इसलिए कोशिश ये होती है कि कदरे आसान हो, जितना हो सके आसान हो, ताकि अब जहां 10 समझ सकते हैं और 90 नहीं समझ रहे, तो 15 तो समझने लगे कम से कम, जो 2 4 5 बढ़े। तो यूं मतलब हम कोशिश करें कि अवाम की समझ में ऐसी बात करें। नंबर 13, बेजरूरत बाजार न जाएं और न किसी दुकान पर बैठे। इसके बगैर तो चलता नहीं है। हजरत तो दुकान की बात कर रहे, हम तो होटल में चौपाल लगाते हैं। अगर आजकल के हमारे मतलब तलबा किराम को हजरत देख लेते तो पता नहीं क्या होता है इन पर। अब तो होटलें आबाद हैं, समझे, होटलों में गपशप हो रही है, टाइम ही टाइम है, मुताला नहीं करते ना, टाइम है इनके पास, टाइम पास करते हैं, होटल में बैठे हुए हैं, चाय आ रही है, बेरे से है, जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही है हट जाओ, जमहूरियत है, कुल्ली इख्तियारत है, जिस तरह बात करनी है वो करेंगे, कोई रुकावट नहीं है। तो फिर आप मेहराब पर और मिंबर में जब आएंगे तो यही अंदाज हो जाएगा, तो करोगे क्या। तो इसलिए हमारे जो मैंने मिसालें दी कि इस तरह के आवाम और बाजारी लोगों से दूरी रहते थे कि इनका अंदाज जो सोबत असर करती है ना, हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। तो क्योंकि हमने जो लाइन ली ना उलमा की और दीन की खिदमत की, तो ये हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना, फूंक फूंक के कदम उठाना। और कभी ऐसों से वास्ता पड़े भी ना, तो हमारी गुफ्तगू में वो लचक भी हो और अंदाज भी हो, अल्लाह करे आ जाए कि उनको बोलने का कम मौका मिले, वो हमारी सुनता रहे, वो गुम हो जाए उसमें, क्योंकि वो अपनी सुनाएगा तो कहीं हमारे अंदर बिठा देगा दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें। एक चुटकुला याद आ गया। शुरू में हम दावत इस्लामी में काफिले लेकर जाते थे तो मैं समझाता था, हम बसों में जाते थे तो मैं समझाता था, देखो कोई भी नए पैसेंजर होते ना, तो इनमें इनफरादी कोशिश का, ये हमारे यहाँ उस वक्त इस्तिलाह नहीं थी, इन पर इनको इज्तिमा की दावत दिया, उसको इज्तिमा होते थे, ये माहाना काफिले और ये शुरू नहीं हुए थे, इज्तिमा वगैरह की इनको दावत दिया करो, बातचीत किया करो उनसे, पैसेंजर से दावत इस्लामी का तारुफ करवाओ। तो एक उन दिनों मतलब हज की तरबियत का इज्तिमा, वो हज का सीजन होगा, हज की तरबियत का इज्तिमा एक ही होता था, मैं उस पर बयान करता था, तो तरबियत करता था, एहराम इस तरह बांधना है, तो आप इस तरह करना है। तो वो हमारा उन 2-4 दिन के बाद इज्तिमा होना होगा इत्तेफाक से, और काफिला हमारा इतवार को निकलता था छुट्टी वाले दिन, और हम इतने सारे जमा होकर वो एक ही काफिला होता था, कहीं असर पढ़ी तो वहाँ बयान किया, कहीं मगरिब पढ़ी तो वहाँ बयान किया, कहीं ईशा पढ़ी तो वहाँ बयान किया, बस 3 बयान होते थे आमतौर पर, वो मैंने ही करने होते थे।
अब ये कि शायद वापसी में हम आ रहे थे तो एक इस्लामी भाई आते जाते थे, इज्तिमा में यूं रेगुलर थे, दाढ़ी भी रख ली थी, लेकिन वो अंदाज अपना था उनका। तो किसी को दावत दी, एक अननोन आदमी को, अजनबी को उसने दावत दी कि वो हज की तरबियत का इज्तिमा हो रहा है फलां दिन फलां जगह, आप तशरीफ लाइएगा। तो उसने हाँ कहा। अब जो इसने जो अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, बाजारी लैंग्वेज किस तरह की दिमाग में बैठी होती है, देखो आना, हाँ गोली तो नहीं दे रहे, ये एक बाजारी लफ्ज है, गोली तो नहीं दे रहे, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने देखा ये कैसे होगा यार। कह रहा हूं मैंने उसको तो चलो जो समझा दिया होगा, लेकिन उस वक्त तो हालात ही ये थे कि इधर उधर से जंगलों से पकड़ कर इंसानों में लाना था, बाजारों से उठाकर कहाँ से, तो इसकी लैंग्वेज होती होंगी। तो अब भी यही लैंग्वेज चल रही होंगी, लेकिन दावत इस्लामी के जो मंझेब इस्लामी भाई होते ना, वो ये लैंग्वेज नहीं बोलते, उलमा नहीं बोलते ये लैंग्वेज, और उनका माशाल्लाह ज़हन मजबूत हो गया होता है। अवाम तो मैं मिसालें दे नहीं सकता, आप मुझसे ज्यादा मिसालें जानते होंगे, और हम हैं भी लाइव इस वक्त। अब वो क्या आया होगा बेचारा, वो तो शायद बजन ही हो गया होगा, क्या बोल दिया मेरे को इसने। नंबर 14, दीन की खिदमत दीन के लिए करें, लालच ना करें। एक जगह से खिदमत कम हो गई तो दूसरी जगह से कसर पूरी हो जाएगी। नंबर 15, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जिक्र करें कि लोग आपको दीवाना तस्वुर करें। तो मजा आया ना, मदीना मदीना है, आका आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 16, सुन्नी बमंजिला एक चराग के है, जितने सुन्नियों का इज्तिमा होगा उतने चराग ज्यादा होंगे, और इनकी रोशनी में, इनकी रोशनी और खैर व बरकत आम होगी। नंबर 17, एक मर्तबा एक साहिब से फरमाया, मैं अपनों से उलझ कर वक्त जाया नहीं करना चाहता, इतना वक्त नेकी की दावत आम करने और बुरों की बुराइयां खत्म करने में गुजारूंगा। नंबर 18, आखिरी अय्याम में हजरत मखदूम पीर सैयद मोहम्मद मासूम शाह नूरी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, शाह साहब मेरी 2 बातों के गवारे ना, एक ये कि मैंने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का, मैं हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद और गुलाम हूँ। दूसरा है कि इस फकीर ने उम्र भर किसी बेदीन से मुसाफहा नहीं किया। नंबर 19, दुनिया का माल और दौलत खाक से पैदा हुआ। ये बड़ा पुरमग्ज इरशाद है। दुनिया का माल और दौलत खाक से पैदा हुआ, और इल्म दीन की दौलत सीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उस दौलत से बेहतर, इस दौलत से बेहतर कौन सी दौलत हो सकती है? उस दौलत से बेहतर कौन सी दौलत हो सकती है जो सीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा हो। इल्म दीन और दुनिया के माल का फर्क कितना बेहतरीन अंदाज में बताया। हमको तनख्वाह थोड़ी है, हमको ये, वो तो सूदी अड्डे में काम करता है उसको इतनी तनख्वाह, वो फुला उसको इतनी तनख्वाह, ये नहीं करना है। आपको वो मिला है जो सीना मुस्तफा से पैदा हुआ, और उनको वो मिल रहा है जो मिट्टी से निकला है। तो माल हाथ का मैल है, तो मुहावरा है। नंबर 20, एक दफा अपने तलामिजा यानी शागिर्दों से इरशाद फरमाया कि एक बात याद रखो, जहां कहीं भी तुम में से कोई खतीब, इमाम या मुदर्रिस हो, अगर खुदा ना खास्ता आपके मुक्तदी सुन्नियों में आपकी वजह से पार्टीबाजी, इफ्तिराक और इंतशार की सूरत बन जाए और अहले सुन्नत में बाहमी फसाद का खतरा पैदा होने का इम्कान हो, तो फौरन वहां से अपनी जिम्मेदारी तर्क कर दो और ये कहो
پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. ہمارے پاؤں تنگ نہیں اور نہ خدا کی سلطنت تنگ ہے. آپ کی وجہ سے جیسے کہ یہاں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ نمازیوں میں یوں انتشار ہو کہ امام نہیں چاہیے، آپ پھر اپنی فیور کا گروپ بنا کر فساد مت کھڑا کرو، چپ چاپ نکل جاؤ عزت کے ساتھ. اس میں آپ کی عزت ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میرے ساتھ اس طرح ایک واقعہ ہوا، ایک دو تین بار ایسا ہوا ہے، مگر وہ سب ایسے ہی تھا، غلط فہمیاں، اور کوئی الحمدللہ کوئی میری وجہ سے فساد نہیں ہوا تھا. لیکن یہ کہ جیسے کہ ایک بزرگ آتے تھے، انہوں کو برسوں سے آتے تھے، 2-3 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. بولا الیاس کی آواز اچھی نہیں ہے تو میں اس کو نکالو تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. وہ عصر میں آتے تھے یا بڑی راتوں آتے تھے، اس طرح جمعہ پڑھتے تھے، خاص زیادہ آتے بھی نہیں تھے. تو کمیٹی نے کیونکہ میرا تو قصور تھا نہیں اس میں، اب آواز خراب ہو گئی ہوگی سمجھے، تو یہ مجھے نہیں کہا انہوں نے، علامہ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرا کافی آنا جانا ہوتا تھا، ان کو جا کر کیا ہے الیاس کو بولو کہ اب یہ شاہ صاحب نے مجھے سمجھایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، سمجھے، یہ لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے، تم مطلب چھوڑ دو امامت. میرا بھی ذہن بن گیا کہ ٹھیک ہے. تو میری اس دن عشاء کی آخری نماز تھی اور میں نے یہ طے ہو گیا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا. عشاء کی نماز پڑھ کر میں بیٹھا، اکیلا بیٹھا تھا اس وقت، تو یہ دعوت صاحب تو تھی نہیں، میں رو رہا تھا. ایک میرا مقتدی نکلا، وہ اندر آ گیا، وہ کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا آج میں نے آخری عشاء پڑھا لی ہے، میری چھٹی ہو گئی ہے. کیا ہو گیا؟ تو میں نے بولا کہ یہ ہو گیا. یہ کیسے ہوگا؟ آپ کیسے جائیں گے؟ اب اس اللہ کے بندے نے، وہ ایسا ایکٹیو نہیں تھا، مجھے حیرت ہے، وہ ایسا ایکٹیو نکلا، خود ہی اس نے مطلب، حالانکہ تحریک چلائی جاتی ہے، چلتی نہیں ہے، لیکن میں نے تحریک چلائی نہیں تھی، خود ہی چل پڑی. اور اس نے، کیونکہ ہمارے مقتدی جو بھی تھے اطراف کے محلہ وغیرہ، مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایک بھی مخالف ہو. میں لڑائی جھگڑے پھڈے الٹی سیدھی بحثیں، میری پرانی مطلب اسی طرح کوالٹی نہیں تھی کہ جھگڑے کروں، پھڈے کروں، فساد کروں. میں آنا جانا، نماز کی دعوت دینا، سلام کرنا، میرا یہ انداز ہوتا تھا. تو الحمدللہ سب نے سائنیں کی، یہاں تک کہ متولی سے اس نے سائن لی، تم بھی سائن کرو، الیاس چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں سائن کر دی. اب اس بزرگ کے پاس یہ متولی لے کر جب اتنے سارے بولتے الیاس رہے اور آپ ایک ہیں، آپ کہتے ہیں نہ رہے، کیا کرنا ہے؟ تو ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا. الیاس بولے رہے. انہوں نے آنا ترک کر دیا اور میری امامت بحال ہو گئی. میں جا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں میرا قصور کوئی بھی نہیں تھا، میں رو رہا تھا، میرا قصور کوئی نہیں تھا. اور یہ ایک حالات جیسے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے کوئی فساد نہیں کیا، نہ میں نے یہ کہا کہ میں رہوں گا، کسی کی طاقت ہے جو مجھے نکال دے. کیونکہ مجھے یہ تو انداز آتا کہ 4 آدمی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ خود بخود انتظام ہو گیا اور ترکیب بن گئی. تو آپ کو ایسے رہنا ہے مسجدوں میں، فساد نہیں کرنا. جانا پڑا تو نو پرابلم، بھلے چلے جائیں، وہ نا کہ ایک در بند 1000 در کھلے. پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. ہمارے پاؤں تنگ نہیں ہیں اور نہ خدا کی سلطنت تنگ ہے. ایک در بند 1000 در کھلے. انشاءاللہ آپ کی عزت باقی رہے گی اور دین کا کام بہتر ہوگا. ورنہ مولانا کے مسئلہ ہوتا ہے نا کوئی، پھر لوگ جو مولانا کے خلاف بولتے ہیں، پھر بعض وہ ہوتے ہیں جو ان کے عقائد کے ترکیب کے نہیں ہوتے، ان کو زیادہ بہانہ مل جاتا ہے، بہت زیادہ مطلب پھر وہ ترکیب آؤٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے سبب مسائل نہ ہو اور اپنی عزت سلامت لے کر جب لگے کہ یہ نکال دیں گے، اس سے پہلے نکل جائیں. میرے حالات سے بعد میں آخر میں یہ ہوا تھا کہ دعوت اسلامی کا کام اتنا بڑھ گیا، میں چھٹیاں بہت کرتا تھا. تو پھر یہ کہ مجھے یہ، حالانکہ میں نے کہا ہوا تھا کہ میری تنخواہ کاٹ لو، تنخواہ نہیں کاٹتے تھے یہ. خیر بعد میں وہ سب میں نے پیمنٹ بھی کر دیا ان کو بغیر مانگے ان کے. تو شرن میرا حق بنتا نہیں تھا. چھٹیاں میں عرف سے زیادہ کرتا تھا. کبھی ظہر میں بیان کرنا چلا جاتا تھا، میں نے فجر میں بیان کیے جا کر مسجدوں میں، کبھی عصر میں بیان کرنا. چھٹیاں ہوتی تھی، پڑھاتا تھا، چھٹیاں کرتا تھا، سب چل رہی تھی گاڑی. تو یہ میرے مخالف نہیں تھے کہ یار کام یہ دین کا کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے چھٹیاں نہیں کر رہا.
تو خیر تو پھر یہ کہ میں نے جب یہ مجھے پتہ چلا گیا کسی طرح کہ یہ نکالنے والے ہیں کہ اب آپ ہمارا مصلی بھی اور مسجد بھی سنبھالنی ہے ہم کو، تو پتہ جیسے ہی چلا نا تو الحمدللہ میں نے ریزائن لکھ کر متولی کو گھر جا کر اس کو سونپ دیا، انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ مگر بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ الیاس تمہارے جیسا ہم کو ملے گا نہیں۔ الحمدللہ یہ اس کے آخری جذبات یہ تھے، اتنا وہ محبت کرتے تھے الحمدللہ۔ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، مغفرت کرے۔ بہت سال انہوں نے مسجد کی خدمت کی تھی الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گیا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور امیر سنت مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ اور توبہ کی بھی کیا برکت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں امیر سنت سرچ کروں گا کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا مرید بنا دیں، جو مدنی چینل پر آپ کا مرید بننا چاہیں یا اسلامی بہنیں بننا چاہیں انہیں بھی اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। आज हम जा रहे हैं नाना अबू के गांव, और वो भी बाय रोड। दोस्तों, इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। हम आपको बहुत सी चीजें बताएंगे भी, लिहाजा हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह इस सफर में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमजा बेटा, कुछ खाने पीने के लिए तो दे दो। सफर में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए ना। जी जी आजम अंकल, बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? आजम साहब, अभी आगे किसी अच्छे होटल पर रुकेंगे, परेशान ना हो, वहाँ आराम से खा पी लेंगे। अच्छा हमजा रजा, वो निम्को तो निकालो, हमने सफर में खाने के लिम्को भी तो रखे थे। अरे आजम अंकल, निम्को तो पीछे रह गए। पीछे रह गए? घर में? नहीं नहीं, घर में नहीं, गाड़ी की पिछली डिग्गी में रखा हुआ है। इतना करीब होकर भी निम्को हमसे इतना दूर है। अच्छा चलो, निम्को नहीं तो कम से कम पानी ही पिला दो। जी आजम अंकल, अभी देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा वसीम साहब, आपके भांजे का क्या हुआ? अब जामिया जा रहे हैं। जी जी हैदर रजा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब के समझाने के बाद अब जामिया जा रहे हैं और मोबाइल फ़ोन की जगह लैपटॉप के ज़रिए अपनी तालीमी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इस्तिकामत दे। अरे वसीम साहब, क्या पढ़वा रहे हैं अपने भांजे को? जामिया में दरसे निज़ामी कर रहे हैं। दरसे निज़ामी? ये कौन सा कोर्स है? अरे भाई, आलिम कोर्स कर रहे हैं। अरे वसीम भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब तो रोबोट्स की दुनिया हो चुकी है। हमारा ऑफिस भी AI पर शिफ्ट हो रहा है। ये AI का दौर है। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बनाते, या कम से कम साइबर सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही का कोई कोर्स करवा देते। इन कोर्सेज की दुनिया भर में बहुत डिमांड है। किसी भी मुल्क में बाआसानी सेटल्ड हो जाता, ताकि आगे अपनी जिंदगी तो अच्छी गुजार लेता। आगे का मैं ही बता देता हूँ। मौलवी बन जाएगा तो ये लोगों की रोटियों पर पलेगा, मस्जिद के चंदे पर अपना गुजारा करेगा, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, सोसाइटी में कोई उसका स्टेटस नहीं होगा। यही कहना चाहते थे ना? जी जी वसीम साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। प्यारे अमीर अहले सुन्नत आजम साहब और इस तरह के कई और अफराद भी ऐसे हैं जो दीनी इल्म सीखने वालों को दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं या उन्हें कमतर महसूस करवाते हैं। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और इल्म दीन की फजीलत के बारे में आप क्या फरमाते हैं? वाकई ये लोगों का इस तरफ जहन है कि मौलवी बन गया तो मस्जिद की रोटियां तोड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इनकी शादी भी नहीं होगी, इनकी रुकावटें फला ये वो, तो लोहे महफूज पर जोड़ा लिखा है तो वो तो होकर रहेगा। वरना जो दुनियावी तालीम याफ्ता होते हैं तो इनकी भी तो शादियों में रुकावटें आती हैं। अच्छा, फिर मैं एक बात मतलब हमेशा कहता हूँ, जो आज दोहरा देता हूँ, कि खुदकुशियां दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। आप ये बताओ कि किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की? दुनियावी पढ़े लिखे डिग्रियों की ठोकरियां और जो फाइलें रखने वाले अब खुदकुशी करने वाली लिस्ट में मिलेंगे। सरमायादार अरबोंपति खुदकुशी करने वालों की लिस्ट में मिलेंगे। प्रॉपर आलिम दीन, वाकई जो आलिम दीन हो, ऐसा एक अभी तक ला कर नहीं दिखाया। मैं बरसों से चैलेंज कर रहा हूँ लोगों को। लोग बोलते मौलवी में अकल नहीं होती। अक्ल है जब तो हराम मौत नहीं मरता। किसको पता है कि ये तो मैं जहन्नम में छलांग मारूँ? ना 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 ना, मुझे तो जन्नत में जाना और दूसरों को भी लेके जाना है साथ। ये खुदकुशी नहीं करता तो ये अक्लमंद होता है। आलिम दीन अक्लमंद होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा चैलेंज अभी तक किसी ने कबूल नहीं किया बरसों में। तो अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे और जो खुदकुशियां करते हैं उनको भी अल्लाह हिदायत दे। मैं एक चोट करता हूँ कि आलिम समझदार होता है और मस्जिद की रोटियों पर पलने वाला नहीं होता। ये हम पर इल्जाम है, हम पर इल्जाम है। मैं तो शुरू से, जब से मेरी दाढ़ी निकली, मैंने दाढ़ी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्जिद की इमामत मैंने बरस तक की है। लेकिन मेरा अपना जहन था कि वो मस्जिद पे जो रोटी खाना था उसको खाने से बचता था, अपने घर पे खाता था। वो खाना भी जायज था,
अब ये कि मेरी भी शादी हुई, मैं पढ़ नाना बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बनी हो गया सब, खानदान मेरा आबाद हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में कोई पूछता नहीं है। तो मैं ये तो कहने से रहा कोई अरबों खरबों पति आ जाए मेरा मुकाबला कर ले कि किसको ज्यादा लोग पूछते हैं, मजहबी आदमी को पूछते हैं या आपको पूछते हैं, आप देख लें। खुदा की कसम अरबों खरबों रुपए दुनिया की सारी दौलत लुटा लो, वो इज्जत नहीं मिलती जितनी इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेने पर, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिदमत के सिले में अता हुई। इतनी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। दौलत तो पीछे घूमती है, सच्ची बात है, दौलत घूम रही है पीछे आगे पीछे। तो ये अल्लाह का कर, अच्छा आप बोले ये एक है, एक नहीं हूं। आप जितने मुबल्लिगीन अपने अराकीन शूरा दावत इस्लामी के जिम्मेदार, इंशाअल्लाह आप इनको इनकी जिंदगी मुतमईन पाएंगे। आप इनके अंदर झांक कर देखें, ये मुतमईन आपको नजर आएंगे। लेकिन दुनिया वाला जो हल में मस्जिद का बोर्ड उसका चढ़ा हुआ होता है, और चाहिए, इधर ब्रांच खुलेगी उधर ब्रांच खुलेगी, इस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क में जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए। इसी में बेचारे की जिंदगी गुजर जाती है। ये हर फर्द की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन की बरकत बहुत ज्यादा है। आलिम होना ये वो एजाज है कि अल्लाह पाक की एक सिफत आलिम है, अल्लाह पाक की एक सिफत आलिम है। अच्छा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम थे, हर नबी आलिम था। अच्छा, सब के सब औलिया किराम आलिम, क्योंकि गैर आलिम वली हो नहीं सकता। विलायत की शर्त में है कि आलिम होना भी है। या आला हज़रत ने सब लिखे हैं, उलमा ने लिखे हैं, उलमा से आपने लिखा है कि जाहिल अनपढ़ पी के पहुंचने वाला कोई वली थोड़ी होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना पहुंचा हुआ, तो पहुंचा हुआ होता है, शैतान के कदमों तक पकड़ के पहुंचा हुआ डी डी कर रहा होता है दरगाह के बैठकर, और लोगों से खींच रहा होता है, माल कश लगा रहा होता है, बहुत पहुंचा होता है। तो अल्लाह तक पहुंचने वाला और होता है, शैतान तक पहुंचने वाला और होता है, समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम अल्लाह तक पहुंचता है, लोगों को अल्लाह तक पहुंचता है। बल्कि यहाँ तक अकवाल मिलते हैं कि अगर आलिम वली नहीं है तो फिर कोई वली नहीं है। उलमा, अच्छा ये इस यहाँ आलिम से मुराद गालिबन मुजतहिद है। ये हकीकत में जो मुफ्ती होता है ना, ये मुजतहिद होता है, और मुजतहिद बहरहाल बहुत थोड़े हुए हैं। इस हर फर्द मुजतहिद नहीं होता। इस दौर में भी कोई मुजतहिद मुजतहिर नहीं है कि भाई ये मुजतहिद है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस उम्मत में 100 से कुछ ज्यादा मुजतहिद हुए हैं। तो यूं है, गली तंग है, हर फर्द इस दर्जे तक नहीं वो, अच्छा वो आलिम, हाँ मुफ्ती असल मुफ्ती मुजतहिद होता है, और बाकी मुफ्तियान किराम जो होते हैं नाकिल होते हैं, मुफ्तियान नाकिल है। नहीं वो मैं समझ गया आपकी बात। वो जहां ये फरमाया ना कि आलिम वली, यानी कि आलिम अगर वली नहीं तो कोई वलीद नहीं, वली नहीं, उसके खुलासा में कर रहा था कि यहाँ मुराद मुजतहिद होता है कि हर मुजतहिद विलायत के दर्जे पर फाइज होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। जी ऐसा ही है, मुजतहिद तो औलिया ही होते हैं और अकाबिर औलिया में से होते हैं। जी, जी। वो होते हैं कि दीगर औलिया उनके मर्तबे पर पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन जो वली के एतबार से जो आपने फरमाया वो तशरीफ फरमाई, वो भी ठीक है कि वली के लिए शर्त यह है कि वो आलिम हो, उसके लिए मुजतहिद होना शर्त नहीं है। जी मैं समझ गया। मैं उस वक्त यही कहना चाहता तो साथ को अल्फाज आगे बीच हो गए कि हर मुजतहिद जो है यहाँ, यानी कि आलिम, इस कौल पर के आलिम अगर वली नहीं तो कोई वली नहीं, इस कौल का खुलासा कर रहा कि यहाँ मुजतहिद मुराद है। वरना हर वली जो वो आलिम जरूर होता है। अंबिया औलिया ये सब आलिम, ठीक है ना। तो अब ये कि आलिम कैसे यार बुरा हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है। आलिम होगा, आपकी मस्जिदें बनाएगा, जुमा पढ़ाएगा, ईद पढ़ाएगा, आपका जनाजा पढ़ाएगा। तो क्या एमए ने पढ़ाएगा जनाजा? क्या जो खुद पूछो, नमाज जनाजा की दुआ आती कि नहीं आती, बोलना नहीं किसी को। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे। तो आलिम ही तो पढ़ाएगा यार। इसाले सवाब कौन करेगा? आलिम ही। आवाम को तो वो पूछते हैं, कुरान शरीफ पढ़ भी लिया तो आएंगे आलिम के पास
कि इसको बख्श दें, आप ईसाल सवाब कर दें। इनको पता नहीं ईसाल सवाब होता क्या है। ये आएंगे आलिम के पास, बच्चा दम करवाने के लिए आलिम के पास आएंगे। कोई मसला खड़ा हो गया तलाक का, आलिम के पास आएंगे। तो यूं मतलब आलिम की जरूरत जो जहां तक है ना, तो वो हदीस पाक में आलिम की जरूरत तो जन्नत में भी पड़ेगी। हाँ हदीस है कि जब अल्लाह पाक फरमाएगा मांगो क्या मांगते हो, तो ये आलिम के पास आएंगे, उलमा के पास हाजिर होंगे जन्नती, और अर्ज करेंगे कि अल्लाह पाक का ये हुक्म है, आप फरमाएं क्या मांगे। तो आलिम इनको रहनुमाई करेंगे, ये मांगो वो मांगो। यूं आलिम की जरूरत, आलिम माइनस नहीं हो सकता। हलाजत भी फरमाते कदम कदम पर आलिम की जरूरत है, मगर आलिम दीन हो। और आलिम दीन वही होता है कि जो मतलब खुश अकीदा, सहीहुल अकीदा सुन्नी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये वजाहत की है। बाकी जो अगर कोई बदमज़हब है, बददीन, गुमराह, इस तरह का अगर कोई है, जैसे आजकल इनकी भी कसरत है, इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं, तो ये आलिम दीन नहीं है। बाकी रहा यूं लफ्ज आलिम तो वो तो शैतान भी था, समझे। यूं देखा जाए तो आलिम सू, आलिम हक, तो उलमा हक की हम बात कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उलमा हक ही उलमा दीन होते हैं। लफ्ज दीन इनके साथ आएगा। जब बहरहाल इल्म दीन की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में जो इल्म दीन हासिल करेगा, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा और उसे वहां से रिस्क अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी ना होगा। अब इसकी शरह में ये लिखा है कि तजर्बा भी इस बात का शाहिद है कि कामिल इखलास और मेहनत के साथ इल्म दीन हासिल करने वाले कई दुनियादार लोगों से ज्यादा बेहतरीन तौर पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कई बड़े बड़े हुक्मरान और अफसरान उलमा किराम के हाथ चूमते, इनकी खिदमत करते और इनकी जूतियां उठाने को सादत समझते नजर आते हैं। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद ने हजरत अबू मुआविया अजीज रहमतुल्लाह अलैह की दावत की। वो आंखों से माजूर थे। खाने के बाद जब हाथ धोने के लिए लोटा और हाथ मुंह धोने का बर्तन लाया गया, तो बर्तन खिदमतगार को दिया और खुद लोटा लेकर हजरत अबू मुआविया अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हाथ धुलाए और कहा, आपने जाना कौन आपके हाथ पर पानी डाल रहा है? फरमाया नहीं। बादशाह ने अर्ज की, हारून। तो हजरत अबू मुआविया रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें दुआ देते हुए कहा, जैसी आपने इल्म की इज्जत की ऐसी अल्लाह आपकी इज्जत करे। हारून रशीद ने कहा, इस दुआ को हासिल करने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था। तो ये कदरदान थे हारून रशीद, उलमा के कदरदान। और भी कई बादशाह गुजरे जो आलिमों की बड़ी खिदमत करते थे। और अब भी आलिम आलिम है, आलिम बादशाह, आलिम बेताज बादशाह। बाकी इख्तिदार जो आना जाना वो चलता रहता है। कभी जिंदाबाद के नारे होते हैं, कभी हाय हाय के नारे होते हैं। तो ये आलिम के बारे में ही नहीं होता। जो आलिम आलिम दीन, सियासत में कूदा तो फिर ये सब होएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आलिम अगर अपने मनसब पर रहे, मेहराब व मिंबर और उम्मत की रहनुमाई करता रहे, तो इंशाअल्लाह फिर इसको कुछ नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यहाँ बाज़ औक़ात क्या होता है, अरे मौलाना, अरे मौलाना, हाँ कुछ दुनिया का कर लिया करो यार। ये अब उससे पूछो कि अच्छा भाई ये बताओ दुनिया का क्या करें, क्या करें? खुशी में, गमी में, शादी में, ब्याह में, खाने में, पीने में, सब में तो पूरे घर है, सब कुछ तो है। तो अब दुनिया का मौलाना क्या करे? तो तुम ये कहना चाहते हो कि दुनिया का मौलाना ये करे कि कुछ गुनाह करे माज़अल्लाह, कुछ बेहयाई के काम करे माज़अल्लाह। तो जो नेकी की तरफ, इल्म की तरफ, उलमा वाली क्वालिटी की तरफ जब जाता है तो वो गुनाहों से बचता है। अपनी ज़िंदगी को तो वही नॉर्मल गुजार रहा होता है, वही खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, नेकी की दावत देना और माशरे में जो उसके जीने का अंदाज है वही होता है। वो गुनाह से बचता है। तो गुनाह से बचने की ज़िंदगी अगर आपको चाहिए, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप दावत इस्लामी के अंदर आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला गुनाह से बचकर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, नेकियों भरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और राहत और सुकून वाली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये आपको यहाँ मिलेगा। वरना
دیگر دنیا کی طرف جاتے ہیں جس کو لوگ عموماً مثال بناتے ہیں. ڈپریشن کی گولیاں وہاں زیادہ بکتی ہیں, دیگر میڈیسن وہاں زیادہ بکتی ہیں, ہسپتالوں میں ان کے زیادہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول میں آپ کو تمام دیکھنے سننے والوں کو دعوت دوں گا, ایک بار اندر آ کر دیکھیے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول کس قدر روحانی, قلبی اور ذہنی سکون دیتا ہے ہمیں, کیونکہ یہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں مدینے کا ذکر ہوتا ہے, یہاں صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, یہاں اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے, اور یہ وہ ذکر ہوتے ہیں جو ہمارے قلب کو سکون اور راحت نصیب کرتے ہیں. اس پریشانی کی عالم میں اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو ایک بار دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی طرف آئے, اجتماع میں آئے, مدنی مذاکروں میں آئے, نیکی کی طرف آئے, تو انشاءاللہ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ قلبی اور ذہنی اور روحانی سکون کہاں سے نصیب ہوتا ہے. تو آپ آئیے اجتماع میں, آپ مدنی مذاکروں میں آئیں, قافلوں میں سفر کریں عاشقان رسول کے ساتھ, درس و بیان میں شرکت کریں. انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کس قدر برکت ہے. کورس کریں, فیضان نماز کورس کریں, اصلاح اعمال کورس کریں, دینی کام کا کورس کریں, اپنے علاقوں میں نیکی کی دعوت دیں. کسی کا ہاتھ پکڑ کے بے نمازی کو کبھی مسجد میں لا کر آپ کھڑا تو کریں, دیکھیں سکون کیسا نصیب ہوتا ہے. ایک بے نمازی آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے جب مسجد میں لاتے ہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے تب کیا وہ نمازی بن جاتا ہے, وہ سکون ملتا ہے. کہیں راہ خدا میں سفر کریں اور کوئی شخص آپ کے نیکی کی دعوت کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے, اللہ اکبر, مطلب کسی اور ہی لیول پر دل ہوتا ہے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ مجھ جیسے کے ذریعے ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے. اس طرف آئیے, اپنے بچوں کو بھی لائیے, اپنے گھر والوں کو لائیے. اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کے جو الٹے سیدھے ہوتے کہ جناب یہ یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, سب مکہ مدینہ ہو جائے گا. مدینے کی محبت ملتی ہے الحمدللہ, اور کیا چاہیے یار, مدینہ. حضرت امام عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دین کی فکر کرو, اپنے دین کی فکر کرو. میں تمہیں تمہاری دنیا کے بارے میں نصیحت نہیں کرتا, تم خود اس پر بہت حریص ہو. دنیا کا لالچ تو تمہارے اندر بھرا ہوا ہے ویسے ہی, اور تم خود ہی اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بڑی تاکید کرتے ہو کہ دنیا بناؤ, دنیا کے ہو کر بن جاؤ, دنیا کرو. میں تمہیں دین کی فکر کرنے کہتا ہوں. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے اپنے دور کی بات کر رہے ہوں گے, تو وہ عشق سلامت دین سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. اب وہ اس وقت ایسا ہوتا ہوگا کہ دین کی سلامتی لوگ مانگتے ہوں گے, اب تو دور بدل گیا, تو عشق سلامت کوئی ہو, عشق کی سلامتی نہیں مانگتے ہوں گے. تو اب میں بہرحال اس میں تصرف اپنے معذرت کے ساتھ کیا ہے کہ مال سلامت ہر کوئی منگے. اب جو پوزیشن ہے مال سلامت ہر کوئی منگے, دین سلامت کوئی ہو. اب تو دین کی سلامتی, ایمان کی سلامتی کی دعا بھی کہاں مانگتے. کوئی بزرگ سے ملیں گے اور روزی میں برکت کی دعا کر دو, پیسے پھنس گئے وہ ہو جائیں, میرا ایمان سلامت رہے, میری مغفرت ہو جائے. یہ سوچ اتنی نہیں ہے. الحمدللہ یہ سوچ دعوت اسلامی نے کافی الحمدللہ دی ہے. لوگ ویسے جنرل پبلک کی میں بات کرتا ہوں, مغفرت کی بات عام طور پہ نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مغفرت کی دعا, یہ انہی سے سیکھا میں نے بھی کہ مغفرت کی دعا کی ہی اہمیت تھی. ایک بزرگ کے پاس جو مجذوب تھے, ان کے پاس آپ گئے تو اس مجذوب نے کہا کہ آپ تو فلاں کام کے لیے آئے ہو نا, اپنے کوئی دنیاوی کام کی طرف اشارہ کیا, تو امتحان لے رہے ہوں گے وہ. تو اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں, میں تو آپ سے مغفرت کی دعا کروانے آیا ہوں. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مغفرت کی دعا کرواتے تھے. اسی طرح مینا شریف میں مسجد خیف ہے, حج کے دنوں میں آپ مسجد خیف میں, اس وقت اتنا بھیڑ نہیں ہوتی تھی, خالی تھی, نماز کا ٹائم نہیں تھا نا وہ, تو خالی تھی. اور ایک یعنی وہاں شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز سنی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پاک یاد آئی کہ اہل اللہ کے ذکر سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ. تو یہ سننے والا بھی ولی ہوتا ہے, ہر ایک کو تو نہیں سنائی دیتی. تو خیر اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ ایک صاحب جو تھے پہلی صف میں سر جھکا کر مراقب تھے, تو ذکر کر رہے تھے سمجھو اپنا. تو وہ اعلیٰ حضرت اس کی طرف بڑھے کہ یہ بس ایک ہی فرض ہے, یہی ہو نہ ہو ولی ہے, اور ولی لا ولی میں شراست.
वली को पहचानता है। खैर, आला हज़रत आगे बढ़े और अभी उस तक पहुंचे इससे पहले उन्होंने हाथ उठा दिए। मफ़हूमन के ये जो पीछे आ रहा है, या अल्लाह इसको इसकी मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि ये आला हज़रत में मग़फ़िरत की दुआ करवाने के लिए बना था, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। फिर मुराक़िब हो गए तो आला हज़रत समझ गए कि ये मिलना नहीं चाहते, जो मकसद था दुआ मग़फ़िरत करने का वो कर दिया, आप जाओ। तो आप वापस तशरीफ ले आए। तो यूं मतलब आला हज़रत मग़फ़िरत की दुआ करवाते थे। हमें भी चाहिए कि जब लगे कि यार इसकी दुआ कबूल होती है तो हकीर दौलत तो वैसे ही मिल जाती है यार, पैसा तो हाथ का मेल है, अब मग़फ़िरत की दुआ कराएं, ईमान की सलामती की दुआ कराएं कि अल्लाह करे बेड़ा पार हो जाए। ईमान सलामत रहा तो सब कुछ है यार, अगर ईमान ही चला गया तो दुनिया की दौलत न फिरौन को काम आई, न कारून को काम आई, न नमरूद को काम आई, तो किसी को क्या काम आएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम डॉक्टर तहसीन अहमद, शोबा कीमिया जामा कराची में एसोसिएट प्रोफेसर, अमीर अहले सुन्नत के मकतूबात जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टाइम पे भेजे वो मिली, कुछ उसमें से पढ़ सका, कंप्लीट पढ़ूंगा इंशाल्लाह। दूसरा ये कि बहुत अच्छी किताब, और इससे एक और अमीर अहले सुन्नत का ज़ौक़ वाज़े होता है जो उन्होंने मुख्तलिफ लिखने की फ़िक्र की और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ वक्त में लोगों को लिख के पैगामात अपने पहुँचाए कि इस मामला को इस तरह सीधा किया जाए, इस तरह की अहमियत उजागर की। और पढ़ के बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग भी अभी मौजूद हैं जो अब लिखने की अहमियत को अभी उजागर कर रहे हैं। अभी भी उनका तरीक़ेकार जो है लिखने का मुख्तलिफ किताबों की सूरत में, मुख्तलिफ किताबों की सूरत में, मुख्तलिफ मलफूज़ात की सूरत में हमें मिलता है। जो पढ़ते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमें पढ़ के एक शौक़ उभरता है कि हमें पता चलता है कुछ मालूमात हमारी मौजूद होती हैं पहले से और कुछ हमारी नई मालूमात में इजाफा होता है। तो मैं जितने भी मेरे जो जामा कराची से मुत्तसिल हैं या जो दूसरी यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी इस किताब को हासिल करें और उसको पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो अपनी ज़िंदगी मुबारका में मकतूबात लिखे, किसी को इज्तिमा की हाज़िरी का, किसी को मक्के मदीने की मुबारकबाद दी, किसी को बच्चे की विलादत पर मुबारकबाद दी, किसी को इल्म दीन पर तरगीब दिलाई, किसी को मदरसतुल मदीना में दाखिले पर तरगीब दिलाई। तो बहुत प्यारे मकतूबात हैं। और आजकल लोग कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स करना चाहते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट द पीपल्स, लोगों से रब्ता कैसे किया जाए। एक आलिम दीन के लिए भी है क्योंकि उसने लोगों से रब्ता करना है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया आज हमारे सामने मिसाल हैं कि इनकी कम्युनिकेशन से अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों लोगों ने इनको रिप्लाई दिया है और उस पर लब्बैक कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मकबतुल मदीना से दस्तयाब है। 1000 रुपये इसका हदिया है मकतूबात अमीर अहले सुन्नत। मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी आशिकान रसूल, मेरा मशवरा है, नाकिस मशवरा है कि अगर आप कबूल फरमाएं तो इंशाअल्लाहुल करीम अगर कोई मक्के मदीने से वापस आया है, आप उसे ये लेटर पढ़कर, अब चूंकि हो सकता है तहरीर ना करें, लेकिन अगर पढ़कर वॉइस मैसेज भी कर देंगे ना, इंशाअल्लाहुल करीम मक्का मदीना हो जाएगा। इंशाअल्लाह उसका दिल बाग बाग हो जाएगा और आपको दुआएं देगा। बच्चे की विलादत हुई है, उसको इसमें मकतूब पढ़े, वो देखकर दुआ दे दे। बहुत ज़बरदस्त मकतूब है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस किताब को मकबतुल मदीना से हासिल करें। इंशाअल्लाहुल करीम घर में बरकत भी मिलेगी इससे इंशाअल्लाह। सईदी 100 कुछ हमारे पास कुछ किताबें मौजूद हैं, क्या कुछ आशिकान रसूल हासिल कर सकते हैं इनमें? कोई अगर कोई ऐसी तरकीब बने तो कुछ। माशाअल्लाह, आपके पास कहाँ से आ गई? कुछ मौजूद है, मुझे मिली है जी, आपके पास है। हाँ, अमीर सुन्नत के मैं अपनी ख्वाहिश बता दूं, मैं बोलते हैं शर्म आती नहीं हुए, मेरी ये ना किताब लिखा हुआ नाम मेरा इस पे। कल मेरी ख्वाहिश थी कि ये मुल्क भर से आए हुए मेहमान जो है ना ये ले जाए इनको। अब लेकिन अब मसला ये कि उनकी तादाद 110, मुहर्रम की आशूरे की निस्बत से किसी ने तोहफा दिया होगा, ये 10 का फिगर। अब ये कि
इन सबको तो ये तो काफी है, दे नहीं, कैसे पूरा करें। अब ये कि कुछ मैंने कहा कैटेगरी वाइज मैं तरकीब करूं। अब मैंने 2 किताबों का तो पूछा कि पढ़े होते तो मैं उनको नजर में रख लेता, लेकिन कोई नजर आया नहीं। जो बाहर से आए हों तो पढ़ ली होगी बातों ने, तो तवज्जो नहीं होगी शायद। ये मुश्किल है कि इतनी बड़ी किताब पढ़े और याद ना रहे कि पढ़ी थी, तो फिर हाफजे का इलाज भी जरूरी है। खैर, अब ये कि क्या मतलब इसमें यानी कुछ कैटेगरी करनी पड़ेगी जिनको हम पेश करें। अब जैसे फरमाए, एक तो ये कि जो इनमें से बाहर से आए हुए हमने जो सादात किराम हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अमीर सुन्नत की सादात किराम से मोहब्बत की नजर कर दे, तो वो जाहिर है कि ये सैकड़ों की तादाद में शायद ना हो, मगर अभी ये आप वो गिनती कीजिएंगे जो बाहर से आए, कराची वाले नहीं। अच्छा, कराची वाले अगर अपने यूं करें जामियातुल मदीना के अलावा से जो आए हों, तो वो भी अगर सादात किराम है तो उनको किसी भी किसी भी सुन्नी वही मदरसे में पढ़ते हो। आज मौलानाओं का समझे दौर रहा है 2 दिन से। तो ये हमारे मौलाना साहिबान जो हैं, हमारे अहले इल्म हजरात जो हैं, इनमें जो सादात हैं वो तो चंद हाथ उठ रहे हैं। जो सादात किराम में हाथ उठाएं जरा, ताकि अभी तो बांटना तो जरा वो तरकीब आउट। लेकिन अब ये कि मैं भी यार सब जल्दी जल्दी हुआ, तरकीब बनाना रहेगा फौरन। तो टोकन अगर है नहीं कोई ऐसा जो टोकन नजर नहीं आ रहे। हाजी ताहिर मदनी, आपने टोकन, हाँ फटाफट टोकन दे दो ताकि अपनी गिनती याद रहे। हाँ, नहीं फिर वो हो जाए कि टोकन मिले और किताब हमारे पास ना हो। मौजूद है, इंशाअल्लाह उल करीम तरकीब बन जाएगी। तो सादात किराम में सिर्फ वही लीजिएगा, कबूल कीजिएगा, आपका एहसान होगा। और अगर आप खुद अगर खुशी से ये करम फरमा दें तो मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर लें कि मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की 25वीं शरीफ की निस्बत से 25 दिन में इसका एक एक हर्फ जो है ना उस पर अपनी नजर करम डाल दे, मुताला फरमा ले। सादात किराम और जिनको भी मिले वो 25 दिन का हदफ मेरा कबूल फरमा ले। 25वीं की निस्बत भी तो अच्छी है ना, अहले इल्म और आला हजरत जैसे आलिम की निस्बत 25वीं शरीफ। अच्छा, मजीद ये कि मैं उनको पेश कर दूं जो सादात किराम को तो मुझे मुफ्त में दे दिए बगैर किसी, आप ये होकर उठकर कहें कि हम हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर करेंगे तो हम 12 दिनी काम दावत इस्लामी की जो मखसूस हैं वो बजा लाएंगे, वो ये वगैरह वगैरह। अब ये जो अता कर दें, झोली मेरी तंग है, आपके यहाँ कोई कमी नहीं है, डालते जाएं। या मेरे यहाँ मतलब लेने में कमी नहीं है, जो दो कबूल है अल्लाह के दीन की खिदमत के हवाले से इंशाअल्लाह उल करीम, माशाअल्लाह। अच्छा, अब जिन्होंने फतावा रज़विया शरीफ की कोई सी पंचतन पाक की निस्बत से 5 जिल्दें पढ़ ली हूं, वैसे तो 5 जिल्दें, वो भी टोकन ले सकते हैं। वो कराची के या तो जाबिया किसी मदरसे, दीनी मदरसे से, आशिकान रसूल के मदरसे में पढ़ते हो, या फिर ये क्या बाहर से मदरसा पढ़ने वाले जो हमारे मदारिस अहले सुन्नत के तशरीफ लाए मेहमान, वो ठीक है ना, 5 जिल्दें पढ़ ली हो। अच्छा, या बाहर शरीयत के कम से कम 12 हिस्से पढ़ लिए हो, हैं 20 हिस्से है ना, तो वो भी टोकन। भाई जल्दी जल्दी टोकन देने वालों, 2-3 इस टाइम में अगर लग जाए ना जल्दी हो जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह। फतावा फैजुल रसूल मुकम्मल पढ़ लिया हो, वकारुल फतावा मुकम्मल पढ़ लिया हो, फैजान सुन्नत पूरी पढ़ ली हो, कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब पढ़ ली हो, गीबत की तबाहकारियां पढ़ ली हो, तो
ये किताबें पढ़ ली हो या दावत इस्लामी के कम से कम किसी इलाके की मुशावरत की निगरानी का शरफ हासिल हो, इसी कैटेगरी में जो मैं बता रहा हूँ वो भी हासिल कर सकते हैं। जिनको दावत इस्लामी के दीनी काफिलों में सफर करते 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 कम से कम बिस्मिल्लाह के 7 हरूफ की निस्बत से 7 माह हो चुके हों। जो मुसलसल फैजान सुन्नत का दर्स देते देते कम से कम 92 डेज 92 दिन हो चुके हों और एक ही हफ्ते में एक छुट्टी की इजाजत है। अच्छा, अब ये ले लीजिए टोकन, अब खत्म हो गए टोकन तो नाराज नहीं होना। 26 और भी आ गई हैं मुझे, 136 हो गई। जिसने सिरातुल जिनान मुकम्मल पढ़ लिया वो भी ले लीजिए। माशाअल्लाह 313 किताबें खुशखबरी मिल गई ने, कुल 313। भाई ये मेरी अभी मैं आपको अपने में वकील, चलो मैं डायरेक्ट जो भी बटेगी मेरी तरफ से बटेगी, मगर मेरा कब्जा तो हो यार। अच्छा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 25 दिन में पढ़ने की नीयत शामिल रखनी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम देखिए, मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज की पाबंदी करते रहिए। अब इंशाअल्लाह किताबें बढ़ती रहेंगी और इनके साथ फिर कुछ सवाल जवाब भी होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो आखिरी दुआ रही भी हो। मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया, मदनी मुज़ाकरा इल्मो अदब का सिलसिला, मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया, मदनी मुज़ाकरा। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी